Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. In this video beta, I'm going to take up some practice questions for the board practical of Computer Science class 12th. And in this practical, there is one question which is based on interfacing Python with MySQL. That is the connectivity based question. That is a compulsory question of your board practical paper, and it is asked for 5 marks. So just in a small attempt to help children uh, perform this question, I decided to come up with this video, and I hope you'll find it useful. So let's proceed with the video. Before I take you to the video, I would just like to show you one thing beta, that this is the exact pattern of your practical question paper, and this through this video I'm going to cover up this point number 2 of lab test given in the revised CBSE curriculum, and the link I'm going to provide in the description. See, for your lab test you get 2 questions, one of 7 marks, another of 5 marks. So the 7 marks question is going to be anything framed on the chapters that you've done in Python, but this 5 marks question will be there, that is going to ask you to write a code which will send a SQL query to a database and display the result. So this is not going to deal with the connectivity of Python as a front end with MySQL as back end. So this 5 marks question I'm going to cover over here. The only thing that you have to keep in mind is that you have to send a single query to the database, and how you will proceed to this question, how you will attempt this question, it's very simple. Fine, so that I'm going to tell you through this video. So I hope you all are geared up for it, and let's proceed with the question for the video. This is a mock drill paper, which is going to cover up question number 2, that is connecting Python with MySQL, for 5 marks. You can be asked any question on this pattern, maybe you will find it helpful. I'm very confident you will find it helpful, and this is going to take out that fear from your mind that this connectivity is difficult. It's in fact very simple. So let me take you through the question first. The question reads, create and use NGO database and create table members as given below. So see, you are given a table over here with 5 records in it, and there are like 6 columns in this table, 6 fields and 5 records, and you have been asked that you go to MySQL, create this NGO database, create table members, and insert these given records in it. Fine, so this is the base work that you have to do. ये काम आप करके रखोगे, ठीक? And after you do this, see there I have taken up in all 8 queries over here. Fine, so you don't have to do 8 of them. You will be asked any single query based on this table created in a database. So आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इतनी सारी क्वेरीज ली हैं, because at least you will get an idea how each type of a DML operation can be performed in in this question. So this is just a sample for the sake of explaining things to you. You might get something beyond this also, but if you are thorough with these 8 things, you won't find it difficult to do the remaining things. Fine. So let me proceed. अब आपकी convenience के लिए, just to keep the length of the video short, and I know that all of you are thorough with SQL commands, I have created this database. ये काम आपको करना है backend पर जाके, that is in MySQL. What you will do, you will write create database NGO. ठीक है, this command will create a database. Then you will use, that is, you will open this database using the use database name command. Fine. After that, I have created this table, create table member ID. I've kept it integer according to the data given to me. I have decided the data types, and ID I've made the primary key also for this table. The name I've kept as a variable length character string 20, age integer, gender single characters there. Either M is going to be stored or F is going to be stored. So I've not mentioned the size. I've simply written char over here.
Then city again, variable length string varchar type 15, and phone also I have kept varchar type size 15 because at times phone numbers have STD codes with them and special symbols like hyphen separating the code part and the actual number part, and moreover integers are like they have a specific range, so that, and we are not using the phone numbers in any sort of calculation, so it's always better to take the phone number as varchar, because लंबा number होते ही it is going to cross the range of integer and that is going to lead to an error. So keep phone as varchar. Fine. Then all these 5 records that have been shown over here, I've inserted them one by one using the insert command, which is a DML command. Insert into member values. I've inserted the record of ID1, ID2, ID3, 4, 5, and then I have displayed this table. So you can see it for yourself that the contents of this table given in the Word file, they are matching the table that I have created over here. So now the work at my backend is done. आप ये काम भी अपनी copies में लिखोगे, because you will also everything that you are doing at the back end, also each and every command you must first write this down, that okay, now my layout is ready, my this in database exists, my table exists, and I've put records into it. Now you are in a position to carry out these queries one by one, and for these queries you will write the code in Python. Fine. And when you will execute the Python script, that script is going to connect your Python front end to your MySQL backend, and then the task will be carried out according to the given query. So the first query over here is display the details of all the members. मतलब कि ये जो काम आपने यहाँ select asterisk from member यहाँ पर किया है, this has to be now done from Python. ठीक है, so उसके लिए I have prepared this py file over here, Python file, and I have put this code over here that is going to connect my Python to MySQL database NGO, and then I will be able to open my table and select its records and show them on the screen. So let me just explain this code to you line by line. Fine children, देखो अब आप. So this is the answer to the A part, which says display the details of all the members. I must have MySQL.connector module this thing imported on this installed on my system. So my first step is to import MySQL.connector, because until unless I have this, I will not be able to do any work with my backend. So I expect all of you to be aware of this thing by now, because आपने पढ़ लिया होगा, and I am also expecting that this is installed on your systems. Fine. So now when MySQL.connector का एक method होता है connect method, which is used to connect your front end to your back end. And this connect method has 4 parameters. I have used all 4 of them. One is host, user, password, and database. So using the host parameter, I mention the name of the server name or the IP address where my database is actually stored. So over here I have written localhost in a string format, because my front end and back end are on the same machine. So if my client and server or my front end and back end are on the same machine, I write localhost for the as the value for the host parameter. Fine. So host के लिए हमने लिखा localhost. Then user is the the name with which I access my MySQL. So when we install MySQL, we give a username and a password. In case we do not give a username, then the default value of username is root. Fine. So like I don't have this thing. I didn't give any username on my PC at the time of installing MySQL, so I am mentioning over here root. In case आपने username password दिया हुआ है तो आप वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है. अदरवाइज अगर आपने नहीं दिया हुआ तो आप root लिखोगे. In case I'm writing root, I need to keep my password blank because I'm not giving the
password as well. So यहाँ पर मैंने दो बिल्कुल blank strings है. See, there's not even a space. I've put two quotes together. The value of password is blank. I have not mentioned any password over here. And as I have created my database already, so I am mentioning that which database I'm trying to connect to. I'm trying to connect to NGO database. So this is like you have to write import mysql.connector, and then mysql.connector has a method called connect which takes 4 parameters. फाइन, क्योंकि हमने डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम सारे पैरामीटर्स दे रहे हैं, होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस. ठीक, और आपने ये सब की वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में देकर इसको क्लोज कर दिया. नाउ द रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, लाइक कनेक्ट मेथड का जो रिटर्न वैल्यू होता है, दैट इज अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट. सो दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट आई कैन गिव एनी नेम, बट जस्ट टू कीप इट रीडेबल I have named it as con, that is a small way of saying connection. So this is the connection object. That return value of connect method is a connection object. Fine. Now step 1 is over. First step, what did I do? First thing I did, I made my connection object. ठीक है. Next step is that connection object. So this connection object, I am now able to establish a connection between Python and MySQL. Now this connection object has a method called cursor. ये जो आपने यहाँ connection object लिखा, इसी का एक और method है, that is the cursor method. Fine. It takes no arguments. Now this cursor method is used to make a cursor object. Now I will be making a cursor object. So what is the use of this cursor object? This is, once my connection is established, I will be using this cursor object to execute my SQL commands from Python. Fine. Another thing, that whatever will be the results of those commands, in case of select statement, I will get some sort of records, that is known as result set. वो result set की processing या row by row, record by record processing के लिए भी ये cursor object use होगा. So two uses. One use, it is used to, once I make cursor object, I can use it to execute a MySQL command from Python, and I will also be able to process the result set, that is the records returned by my MySQL query row by row using this cursor object. So how we'll do that, you will come to know subsequently. So I have made my cursor object. How? Which object is used to make cursor object? It is the connection object. So connection object's name is con. Connection object किसकी हेल्प से बनाया था हमने? Connect method से. ठीक. So connection object की हेल्प से हमने cursor object बना लिया, and again to keep the code readable, I have named it CUR, that is cursor. Fine. Now what I have to do, there's another method of cursor object, that is execute. It is known as execute. So cursor object का method होता है execute, to which I can provide a query as an argument, and then that query is going to get executed, and whatever will be the results of this query, I will be able to process them through my cursor object. Fine. So two ways you can give a query, beta. Either query is in string format, remember that. Fine. So आपने query variable एक string object बनाया equal to, और आपका a part क्या कहा था? Display the details of all the members. So the query that you've written over here is select asterisk from member, because you want to see every detail. So asterisk is going to represent all the columns, and in the absence of where condition, I'm actually trying to fetch all the records as well. So select asterisk from member, ये मैंने query बनाई, और मैंने cursor object जो ऊपर बनाया है उसका एक और method होता है execute, और execute के bracket में I have mentioned this query. So now try and understand the flow. MySQL.connector के connect method से बनता है connection object, connection object के cursor method से बनता है cursor object, and cursor object के execute method से execute होती है हमारी MySQL की query. फाइन. आप चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट ब्रैकेट में ये क्वेरी ले सकते थे, बट आई हैव ट्राइड टू कीप इट सेपरेट. मैंने क्वेरी को पहले एक वेरिएबल में डाला है, एंड देन दैट वेरिएबल आई हैव रिटन इनसाइड द ब्रैकेट एज एन आर्गुमेंट. सो वंस दिस क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड, what will happen, all the records
और इसको हम बोलेंगे रिजल्ट सेट। इस क्वेरी का जो रिजल्ट सेट है वो इस कर्सर के पास, ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा। नाउ आई नीड टू प्रोसेस इट रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एंड शो इट ऑन माय स्क्रीन। मुझे स्क्रीन पर दिखाने के लिए कर्सर ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है, दैट इज फेच ऑल। फेच ऑल सेज जो रिजल्ट सेट में सब कुछ आप लेकर आओ, और फेच ऑल क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स को, मतलब जो क्वेरी टेबल के रिकॉर्ड्स हैं उन्हें एक लिस्ट में टपल्स में डालकर रिटर्न कर सकता है। सो द रिजल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ फेच ऑल इज अ लिस्ट ऑफ टपल्स। नाउ दैट लिस्ट ऑफ टपल such that each tuple is a record, such that each tuple is a record from the table. ठीक है, सो आपके पास 5 अगर रिकॉर्ड्स हैं, सो लिस्ट में 5 टपल्स आएंगे। ईच टपल विल बी 1 रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड। फाइन, सो एक लिस्ट आ जाएगी। जब आप फेच ऑल मेथड को कॉल करोगे, ये लिस्ट एल आ गई। अब अगर आप इस लिस्ट को डिस्प्ले करते हो तो लिस्ट ऑफ टपल्स फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा मेंबर टेबल का। आप चाहते हो कि इस लिस्ट पर लूप लगाओ, सो फॉर रिकॉर्ड इन एल, REC इन एल, REC ओवर हियर मींस रिकॉर्ड, आई विल लूप ओवर दिस लिस्ट। तो मेरा एक एक टपल प्रिंट होता चला जाएगा, लिस्ट में से एक एक टपल आएगा REC में, और REC प्रिंट करा देंगे। और अगर आप चाहते हो कि टपल की फॉर्म में ना आके एग्जैक्ट वैल्यूज आए, सो आपने फॉर REC इन एल लगाया, पहला टपल यानी पहला रिकॉर्ड REC में आया। उस टपल में आपको पता है रिकॉर्ड हमारे कितनी फील्ड से बना है, इट इज मेड अप ऑफ 6 फील्ड्स। सो मैं रेक 0 यानी मेरी आईडी प्रिंट होगी, रेक 1 मेरा नेम, रेक 2 मेरी एज, आई थिंक रेक 4 मेरा जेंडर था, रेक 4 मेरी सिटी थी, और रेक 5 मेरा फोन नंबर था। ठीक है, ये करने के बाद आप कर्सर को क्लोज कर दोगे और कनेक्शन ऑब्जेक्ट को भी क्लोज कर दोगे। सो दिस इज गोइंग टू detach your put an end to the connection that was established from this code. Fine, so let's run this code and see what sort of output we are going to get. आपको ये सारे methods नहीं देने बेटा, देखो आप इसको टैली करो। यहाँ से मैंने आपसे बताया था जब आप fetch all करते हो तो L में list of tuples आएगा, सो ये list of tuples आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपको इस फॉर्मेट में अगर आप इसको मैक्सिमाइज करके देखो, सो ये रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एक एक टपल आया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरा जो मैंने लूप लगाया फॉर रेक इन एल, सो पहला टपल आता है REC में, वो प्रिंट हो जाता है। फिर सेकंड टपल आता है, थर्ड टपल आता है, फोर्थ टपल आता है, फिफ्थ टपल आता है। सो लाइन बाय लाइन यू गोइंग टू गेट द रिकॉर्ड्स इन, ये मतलब इस लिस्ट में से एक एक टपल एक्सट्रैक्ट होके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आप ये चाहते हो कि टपल फॉर्मेट में भी ना आए, मतलब कि ये नॉर्मल डेटा की तरह है, कॉलमनार फॉर्मेट में आए, तो आपने क्या लिखा फॉर REC इन एल, REC इन एल में बेटा ये उठ के आया, सपोज पहला रिकॉर्ड। अब इस टपल का 0th एलिमेंट क्या है, 1, वो प्रिंट हुआ। फिर आपका नेम प्रिंट हुआ, फिर आपका सेकंड इंडेक्स पर जो वैल्यू थी वो प्रिंट हुई, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, इस तरीके से आपने मतलब इंडेक्स वाइज प्रिंट करा दिया। तो ये आपका टपल फॉर्म में भी नहीं आया, और इस तरीके से आपका डेटा मेंबर टेबल का विजिबल हो गया। सो यही आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आप कैसे डेटा को, सारे डेटा को पाइथन के थ्रू दिखाओगे, बैकएंड से ना दिखाकर। फाइन, सो आप इसमें से मेरे अकॉर्डिंग आप ये मैंने आपको समझाने के लिए तीनों मेथड्स दिए हैं, आप सेकंड या थर्ड मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट पार्ट नंबर A. I'll quickly close it and I will proceed to part number B. And the question says update the phone number of member with ID 5 to 9987198972. ठीक है, so I will just quickly take you to the Python code and अभी आप देख पा रहे हो, just a moment, I will quickly take you to the Python code and now I'm going to open up B, solution to B part. So here it is, see, update the phone number of ID 5 to 99871. अभी देख लेते हैं ID 5 का फोन नंबर बेटा ये है 90807 05432। हमें ID 5 का फोन नंबर चेंज करना है। सो दिस पार्ट इज गोइंग टू रिमेन कॉमन। ठीक है, कर्सर ऑब्जेक्ट तक आप बना लोगे, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं अब नहीं करूंगी। अब आपकी क्वेरी का नेचर चेंज होता है, तो मैं इस लाइन से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक, अब आप अपनी क्वेरी फ्रेम कीजिए। अपडेट टेबल नेम यानी मेंबर, सेट कॉलम नेम जिसे चेंज करना है यानी फोन, इज इक्वल टू न्यू वैल्यू,
फाइन, अगर इतने पे रुकते हो तो सभी मेंबर्स के फोन नंबर्स यही हो जाएंगे, बट वी हैव बीन टोल्ड टू अपडेट द फोन नंबर ओनली फॉर मेंबर विद ID 5. सो आई विल फर्स्ट राइट माई क्वेरी. बेटा ऐसे ही लिखना, वेरिएबल में डाल देना स्ट्रिंग बना के, क्लैरिटी रहती है आपको. ठीक है, अपडेट मेंबर सेट फोन इज इक्वल टू जो भी आपको गिवन फोन था वेयर ID इज इक्वल टू 5. अब क्या करोगे, कर्सर के एग्जीक्यूट में आप ये क्वेरी वाला वेरिएबल डाल दोगे. सो ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होगी. अब देखो अपडेट का तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, अपडेट कमांड बैकएंड पे एग्जीक्यूट हो जाता है. एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो DML कमांड्स जो हैं हमारे इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट, in case of insert update and delete where we are actually making changes to the table. इन तीनों से ही टेबल में चेंजेस होंगे. इंसर्ट से नया रिकॉर्ड आएगा, अपडेट से कंटेंट चेंज होगा, डिलीट से रिकॉर्ड हटेगा. सो आपको एक ध्यान रखना है कि इन चेंजेस को परमानेंट करने के लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट का मेथड होता है कमिट. ये आपको मैंडेटरली लिखना है. अगर आप ये लाइन नहीं लिखते तो इस क्वेरी का कोई इम्पैक्ट आपके बैकएंड पर नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड राइट दैट permanently save the changes to the data. To permanently you have to save the changes, so you have to DML कमांड के आपको चेंजेस सेव करने हैं तो आपको con.commit यहाँ पर कनेक्शन ऑब्जेक्ट का मेथड है, आपको यहाँ कॉल करना पड़ेगा. और इसके हेल्प से जो आपकी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपके टेबल में आएगा, यानी फोन नंबर ID 5 का चेंज हो जाएगा. सो आपने रिकॉर्ड अपडेटेड दिखा दिया. अब आप फिर से वही कोड लिखो जो आपने ए पार्ट में लिखा था. आप यहीं से दिखाओगे, बैकएंड पे जाके टेबल्स के चेंजेस चेक नहीं करोगे, यहीं से चेक करोगे. आप क्या लिखोगे, नई क्वेरी बनाओगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम मेंबर, कर्सर को ये नई क्वेरी पास करोगे, फेच ऑल लगाओगे, फेच ऑल से सारे रिजल्ट सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे आपके. ठीक, और वैसे ही लूप लगाकर आपने यहाँ एक मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, डेटा ऑफ मेंबर टेबल आफ्टर द चेंजेस. वैसे ही आप इस लिस्ट में जिसमें लिस्ट ऑफ टपल्स आया फेच ऑल का रिजल्ट, उस पर लूप लगाओगे और आप रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड सारे फील्ड्स को, मतलब for every record you will print all the 6 fields. Every record as it will be fetched from L into REC, you will use all 6 indices of REC to print the record, so that even the changes that you have made to ID 5 आप यहाँ से देख पाओ. So let me just execute this code. ध्यान रखना इस कोड में हमने 2 बार कर्सर को यूज किया, 2 बार एग्जीक्यूट करा. पहले एग्जीक्यूट कमांड था to execute the update query and then commit it to the database, and next execute command था तो next use of execute function was to see the results records of the table whether they have been changed or not. Fine, so let me just run this code and see बेटा पहले ये वाला फोन नंबर था, एंड इफ नाउ यू कैन मेक आउट ऑन योर स्क्रीन्स दैट ID 5 का फोन नंबर चेंज होकर ये हो गया है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद आपने उस क्वेरी के रिजल्ट्स को भी दिखाना है. तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि स्मॉल पाइथन प्रोग्राम दैट सेंड्स अ क्वेरी टू द डेटाबेस एंड देन डिस्प्लेज द रिजल्ट. सो आपको उसका रिजल्ट भी यहीं पर दिखाना होगा. ठीक है, आपको आई होप अब तक इजी लग रहा होगा. और अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी पर. पार्ट नंबर सी वर्ड फाइल से देख लेते हैं. वैसे मैंने कंटेंट यहाँ डाला हुआ है. पार्ट नंबर सी सेज डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ मेंबर ID 4. नियमित तृप्ति के रिकॉर्ड को यहाँ पर डिलीट करना है. ये रहा कोड, जल्दी से देखते हैं. ठीक, सो यहाँ तक का कोड बिल्कुल सेम है. कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर्सर बनाया. अब यहाँ से आपका कोड चेंज होना शुरू होता है. क्वेरी क्रिएट करी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. सो डिलीट फ्रॉम मेंबर वेयर ID इज इक्वल टू 4. ठीक, मगर आप वेयर कंडीशन नहीं लोगे तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना. आप एग्जीक्यूट कर दिए क्वेरी, और मैंने जैसे आपको बताया था अपडेट डिलीट इंसर्ट के बाद आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट का कमिट मेथड कॉल करना है, so that the results of this query are permanently saved in your table. So this record now stands deleted. और अब हम वही करेंगे, हम क्वेरी बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेरी बनाएंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम मेंबर, ये देखने के लिए कि हमारा वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है टेबल से या नहीं. इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे. कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू फेच ऑल करके रिजल्ट सेट को L में लेके आएंगे. L क्या है बताओ जल्दी से, लिस्ट ऑफ टपल्स. इस लिस्ट ऑफ टपल्स को हम लूप ओवर करेंगे और हर एक फील्ड को रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड डिस्प्ले करा के अपने कर्सर और कनेक्शन को क्लोज कर देंगे. ठीक, सो दोनों क्वेरीज हो गई, डिलीट और डिलीट के बाद सेलेक्ट. लेट्स रन दिस
सी बेटा, रोल नंबर 5 सॉरी मेंबर आईडी 5 का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो देख रहे हो आप रिकॉर्ड डिलीट भी हो रहा है, फ्रंट एंड पर आपको ये भी पता चल रहा है और बैक एंड से आप उस अपडेटेड टेबल को भी दिखा रहे हो। फाइन। सो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको ये सब समझ में भी आ रहा होगा और आप प्रैक्टिकल में इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। सो डी पार्ट कहता है डिस्प्ले द जेंडर वाइज हाईएस्ट एंड लोएस्ट एज। जेंडर वाइज मतलब मेल्स में हाईएस्ट लोएस्ट एज किसकी है और फीमेल्स में हाईएस्ट लोएस्ट एज किसकी है। ठीक है। सो अब इसको पता है डिस्प्ले का मतलब आपकी सिलेक्ट क्वेरी लगेगी, तो आपका काम और सिंपल हो जाता है। आपने कनेक्टर पैकेज को इंपोर्ट किया, कनेक्ट किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया, अब क्वेरी दी। ये क्वेरी इन्वॉल्व करेगी बेटा ग्रुपिंग, क्योंकि आप ग्रुपिंग किस पे करोगे, जेंडर पर। आप एक ग्रुप बनाओगे मेल का, एक ग्रुप बनाओगे फीमेल का, एंड विद इन ईच ग्रुप आप क्या क्या डिस्प्ले कराओगे, मैक्सिमम एज एंड मिनिमम एज। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेलेक्ट जेंडर, ठीक है, देन मैक्स एज, एग्रीगेट फंक्शन मैक्स, एग्रीगेट फंक्शन मिन, एज कॉलम पर लगाया, फ्रॉम टेबल नेम मेंबर, देन ग्रुप बाय जेंडर। सो एक ग्रुप बन गया जेंडर पर और एक ग्रुप बन गया आपका एक ग्रुप बनता है आपका जेंडर पर और उस ग्रुप के अंदर आपका समराइज कैसे होता है डेटा, दैट मैक्सिमम एज कितना है और मिनिमम एज कितना है। क्वेरी को आपने एग्जीक्यूट किया, फेच ऑल किया, बहुत ध्यान से देखना। अब आपकी क्वेरी में 3 कॉलम्स आएंगे बेटा, जेंडर, मैक्स एज, मिन एज। ठीक है। सो जब आप इस एल पर फेच ऑल करने के बाद लूप लगाओगे, सो इस टपल में आपको पता है 3 कॉलम्स ही, हर रिकॉर्ड के 3 कॉलम्स आएंगे। सो रेक 0 होगा आपका जेंडर, रेक 1 होगा आपका मैक्सिमम एज और रेक 2 होगा आपका मिनिमम एज। ठीक है। सो यहाँ पे 3 4 5 मत लिखना, बिकॉज सेलेक्ट एस्ट्रिक नहीं लिख रहे हो आप कि सारे कॉलम्स आएंगे। आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पर 3 कॉलम्स दे रहे हो। सो यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग भी 3 कॉलम्स के लिए ही करनी है। सो लेट्स रन दिस एंड सी द रिजल्ट्स in front of us. So female, the highest age is 22 and the lowest age is 20. Similarly for male, it is 21 and minimum age is, highest age is 21 and minimum age is आपका 20. ठीक है। तो आप देख रहे हैं सुमित की 20, अभिनव की 21 है, नंदिनी 22 एंड सोनल 20. सो उस अकॉर्डिंग आपका जेंडर वाइज हाईएस्ट लोएस्ट एज आ गई मेंबर टेबल से। ठीक है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने कमिट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सेलेक्ट कमांड है, सेलेक्ट कमांड से सिर्फ डेटा फेच होता है, टेबल में कुछ चेंजेस नहीं होते, इसलिए हमें कमिट लगाने की जरूरत नहीं होती। कमिट हम लगाएंगे जब हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे। ई पार्ट पे बढ़ते हैं। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एनजीओ मेंबर्स हुज सिटी इज न्यू दिल्ली। अगेन वेरी सिंपल कोड, इंपोर्ट करा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, कर्सर बनाया, क्वेरी लिखी। क्वेरी में क्या लिखा हमने, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेंबर वेयर सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली। अब ये केस सेंसिटिव होता है मैचिंग, तो यहाँ ध्यान से लिखना न्यू दिल्ली। ठीक है। न्यू दिल्ली आपने यहाँ लिख दिया, सिटी जहाँ न्यू दिल्ली है वो मेंबर्स की सारी डिटेल्स आनी है, यानी फिर 6 के 6 कॉलम्स आएंगे। क्वेरी को एग्जीक्यूट करो, फेच ऑल करके रिजल्ट को एल में लाओ, एल पर लूप लगाओ, रिकॉर्ड पिक करो, टपल आएगा, उस टपल के इंडेक्स वाइज ऑल 6 कॉलम्स को 0 से 5 तक के प्रिंट करा के कर्सर और कनेक्शन को क्लोज कर दो। ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। देखो, तो जहां पर सिटी न्यू दिल्ली थी दैट वाज नंदिनी एंड सुमित, इनके रिकॉर्ड्स आ गए। देख रहे हो आप कितना आराम से सारा काम हो रहा है। हमारा फ्रंट एंड कितनी ब्यूटीफुली हमारे बैक एंड से कनेक्ट हुआ है। हम सारा काम बैक एंड का अपने फ्रंट एंड पर, अपने यूजर इंटरफेस पर देख पा रहे हैं यही। ठीक है। सो अब बढ़ते हैं हम अपने एफ पार्ट पर। सो लेट्स प्रोसीड टू पार्ट नंबर एफ। एंड पार्ट नंबर एफ में देखो बेटा, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द मेंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो भाई, इंपोर्ट किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, कर्सर क्रिएट किया और उसके बाद आपने यहाँ पर क्वेरी लिखी। ठीक। क्वेरी लिखने के बाद क्वेरी कैसे बनाओगे, देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेंबर ऑर्डर बाय, है ना, ऑर्डर बाय क्लॉज दिया, किस कॉलम पर ऑर्डरिंग करनी है, एज पर, और डिसेंडिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, DESC। अगर असेंडिंग होता है तो लिखते हैं ASC या कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि डिफॉल्ट ऑर्डरिंग असेंडिंग होती है। सो ये आपकी क्वेरी क्रिएट होगी। अब जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो आपके कर्सर में क्या आ जाएंगे, सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन किस ऑर्डर में आएंगे, एज के डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो एल में आपने फेच ऑल कर लिया। फिर से बता रही हूँ फेच ऑल क्या करता है, लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करता है।
अब आपने उस लिस्ट ऑफ टपल्स पर लूप लगाया, एक एक टपल REC में आया और REC को बेटा आप प्रिंट कराते चले गए कॉलम बाय कॉलम. सो एवरी रिकॉर्ड विल बी प्रिंटेड कॉलम बाय कॉलम. कर्सर क्लोज, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लोज. लेट्स सी द आउटपुट. सो देखो, पहले हाईएस्ट एज है नंदिनी 22, then Abhinav 21, then Sumit 20, then Sonal 20. So in ascending order, in descending order of age, we are able to see all the records, all the 4 records on our screens. Fine. So as simple as that. Let's proceed to part number G. And बहुत जल्द हम अपने टारगेट तक पहुंचने वाले हैं. So part number G में देखते हैं हमारी क्या रिक्वायरमेंट है. डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ मेंबर विद ID2. यहाँ मैंने थोड़ा सा वेरिएट किया है. देखो, ID पे हम सर्चिंग कर रहे हैं. ID मेरी प्राइमरी की है. सो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कनेक्शन क्रिएट करके कर्सर बना लूंगी, क्वेरी लिखूंगी, आई राइट सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम मेंबर वेयर ID इज इक्वल टू 2. आपको अच्छे से पता है दैट व्हेनेवर वी फेच अ रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की, वी गेट एग्जैक्टली 1 रिकॉर्ड, बिकॉज प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होती, यूनिक होती है फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स. सो जब भी आप प्राइमरी की पर सर्चिंग करोगे, क्राइटेरिया दोगे, तो एक रिकॉर्ड आता है बेटा. ठीक है. सो कर्सर को आपने एग्जीक्यूट मेथड के साथ आपने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी. अब यहाँ मैंने फेच ऑल की तरह करा है यूज फेच 1. ठीक है. फेच 1 क्या करता है? फेच ऑल करता है लिस्ट ऑफ टपल्स देता है, और अगर कोई क्राइटेरिया से रिकॉर्ड नहीं आ रहे तो एक एम्प्टी लिस्ट देता है. फेच 1 क्या करता है? टपल रिटर्न करता है. फेच 1 is exactly 1 record will be fetched, क्योंकि आप प्राइमरी की पे सर्च कर रहे हो. सो जस्ट टू फेच ऑल से भी चल जाता है, बट ताकि मैं आपको एक अलग चीज बता सकूं, मैंने यहाँ फेच 1 लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा. फेच 1 से पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, एक सिंगल रिकॉर्ड आएगा टपल की फॉर्म में. सो यहाँ पर जो मेरा L है ये एक टपल होगा. ठीक, मैंने इसको डिस्प्ले भी कराया है, मैं आपको भी दिखाऊंगी कि टपल आता है. तो इसलिए मैंने इस L को भी प्रिंट कराया है. और अब जब मैं टपल पे लूप ओवर करूंगी, सो टपल का एक एक एलिमेंट मेरे पास इसमें आएगा. ठीक. सो एक ही टपल है. लूप, अगर आप टपल पे लूप ओवर करते हो या किसी भी सीक्वेंस पे लूप ओवर करते हो, तो उसके सारे एलिमेंट बाय एलिमेंट वो इसमें आता चला जाएगा REC में. सो REC में पहले आएगा उस टपल से उठकर ID, वो आपने प्रिंट करा दी. एंड पैरामीटर को मैंने स्पेस दे दिया, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी फील्ड्स के बीच में एक स्पेस आए. ठीक है. सेपरेटर यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि सेपरेटर तब यूज होता है जब आपके पास प्रिंट में मल्टीपल आउटपुट्स हैं. हमारा एक ही आउटपुट है, दैट इज REC. नाउ व्हाट दिस REC इज गोइंग टू फेच फॉर मी, इट इज गोइंग टू फेच फॉर मी one एलिमेंट फ्रॉम द टपल. सो दैट one एलिमेंट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन. और एंड मैं चाहूंगी कि वो पूरा रिकॉर्ड सेम लाइन में है, तो मैंने एंड को स्पेस दे दिया है यहाँ पर. ठीक है. सो आई जस्ट एग्जीक्यूट इट एंड शो इट टू यू सो दैट इट्स मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सी, this is how the code is going to run. fetch 1 करते ही मेरे पास टपल आया जिसमें मेरा ID2 का पूरा रिकॉर्ड आ गया. ठीक है. सो दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ ID2. अब मैं इस REC पर लूप लगाती हूँ. सबसे पहले REC में मेरे पास इस टपल से क्या आएगा? 2 प्रिंट होता है. फिर एंड पैरामीटर स्पेस है, लाइन ब्रेक नहीं होगा. स्पेस के बाद नेम की वैल्यू आएगी, स्पेस के बाद एज, देन जेंडर, देन सिटी, देन फोन नंबर. फाइन. सो रेक 0 वगैरह कुछ मत लिखना है यहाँ पर. ठीक है. क्योंकि आपके पास रेक में क्या आ रहा है? एक एक एलिमेंट आ रहा है उस टपल का. फाइन. सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फेच 1 जब आप करोगे तो टपल आएगा जिसमें सिंगल रिकॉर्ड आएगा. ठीक. मैंने वो फेच 1 क्यों यूज किया है? क्योंकि मेरी क्वेरी में ID पर कंडीशन लगा है, ID मेरी प्राइमरी की है, मुझे एक यूनिक रिकॉर्ड रिटर्न होगा. और फिर मैं उसको एज इट इज प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं फेच 1 के रिटर्न टपल को एज इट इज प्रिंट करा सकती हूँ. और अगर मैं उसे प्रॉपर स्पेस के साथ या वैल्यूज के साथ इंस्टेड ऑफ अ टपल एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं इस मेथड से भी प्रिंट करा सकती हूँ. कर्सर क्लोज, कनेक्शन क्लोज. फाइन. सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर. बेटा अब हम बढ़ते हैं अगले और लास्ट कोड पर, दैट इज पार्ट नंबर H. और इसमें भी हम कुछ इंटरेस्टिंग सा ही करेंगे. लेट्स सी व्हाट part H has in store for us. So H part says insert the details of a new member. 5 records हमने backend से डाले थे, एक record हम delete कर चुके हैं. Now we are left with 4 records. I have to insert the details of a new member now with the value of ID, name, age, gender and city and phone number given in the question.
सो बिल्कुल सिंपल, सारे ये तीनों स्टेप्स एज इट इज रहेंगे। आपको क्या करना है, क्वेरी क्रिएट करके अपना इंसर्ट क्वेरी दे देनी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और सारी वैल्यूज आप इस तरीके से दे दोगे, varchar वैल्यूज या कैरेक्टर वैल्यूज कोट्स में और सिंगल कोट्स में, और इंटीजर वैल्यू विदाउट कोट्स। ये आप देखिए अपनी क्वेरी फ्रेम कर लेना। ठीक, आप क्या करोगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दोगे। और याद है आपको मैंने क्या बताया था, याद करो, इंसर्ट अपडेट डिलीट के बाद हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट का कमिट मेथड कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो चेंजेस हमें क्या करने हैं, टेबल में परमानेंटली सेव करने हैं। सो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद अब फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ द क्वेरी। तो डिस्प्ले करने के लिए अब हम फिर से क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम मेंबर। इससे हमारा वो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और ये न्यूली इंसर्टेड रिकॉर्ड भी ऐड होके आ चुका होगा। फेच ऑल करो एग्जीक्यूट करने के बाद, और लूप लगा के फेच ऑल वाली लिस्ट ऑफ टपल्स पर क्वेश्चन सारे रिकॉर्ड्स को कॉलम बाय कॉलम प्रिंट कर दो, कर्सर क्लोज, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लोज। लेट्स रन दिस। See beta, how beautifully this record has been inserted through our code. Now हमने बैकएंड पे जाके इंसर्ट नहीं किया, हमने यहीं से इंसर्ट किया। जल्दी से देखें हमारे बैकएंड का क्या हाल है। बैकएंड में जाकर अगर मैं अब सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम मेंबर करती हूँ, ये देखो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। नया रिकॉर्ड जो मैंने पाइथन से डाला था वो भी यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट this model question paper in which I have taken up a mock drill of your question number 2 of the practical CS practical बोर्ड प्रैक्टिकल। और इसमें आपको क्या करना होगा मैंने आपको बता दिया है। कोई एक क्वेरी लिखने को आएगी आपको, ये ज़रूर ध्यान रखना, अगर इंसर्ट अपडेट डिलीट आता है तो आपको दूसरी क्वेरी के थ्रू सेलेक्ट स्टार करके सारे रिकॉर्ड्स का रिजल्ट भी दिखाना होगा। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करना। आई विल give me a day's time. I will provide the link for this question paper and its solutions in a PDF in the description. Give me a day's time. I will provide it to you in the description. You can check it by this time tomorrow. It will be there in the description. आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के एग्जीक्यूट करके देखो और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर दो, जिससे आई गेट टू नो दैट व्हाट माय एफर्ट्स या फॉर यू दे हैव बीन सक्सेसफुल and they have helped you in some little way or the other. So till we meet again children, happy learning, all the best for your board practicals. God bless you. Hard work karo, hard work never goes wastes, and you will definitely come out with flying colors, not only in your practicals but also in your theory exams. God bless you beta.